Greetings, everyone. In today's session, we'll be revising risk management, and these are basically, you can say, LDRs, or what I like to call them, LDR, last day revision. Basically, you can say that in these sessions, you are going to understand the topic in as less time as possible. So basically, you are going to understand the topic in as less time as possible. And this session is not going to be about how to solve the question or how to go through the. This session is all about. This session is all about the topic itself. Okay, so let's dive in and jump straight to the video. Okay, so risk management. Basically, in the syllabus of financial management in your ACC examinations, risk management is of two types: currency risk management and interest risk management. So, in these two types of risk, what we understand or what we study in this topic is about how to go through these risks, and if a business faces these risks, then how can you understand to hedge them? How can you try to minimize your loss or try to minimize the loss of the business from these risks as much as possible? Now, basically, there are going to be two topics. There are going to be two topics for our risk management session. The first one is currency risk management, and second one is going to be interest risk management. So let's just jump straight into currency risk management and try to understand it. Okay, in this session, I'm going to give this disclaimer. This session is not going to be all English or not all Hindi, Urdu. This is going to be a bilingual session. I'm going to change my language according to the scenario or according to the area of focus. I'll try to produce this lecture in as much of my English as possible, but wherever I need to change my language and change my tone to make you guys understand the particular area, I'm going to change it. Okay, now everything aside, let's just jump straight into it. Currency risk management. Okay, so what is currency risk management? Basically, currency risk management is the risk that currency rates will go up if we have to make a payment in future, or the risk that the currency rates will go down if we have to receive money in future. Now, we as a business, we need to make sure that our payments are done on time and we are receiving the payments on time. But large businesses tend to have this risk that at the date they're going to receive the payments, the currency risk is down, currency rate is down, and we are going to receive a lesser amount of the home currency that we operate in. And there's risk that when we are going to make the payments, the currency rates are going to be very high, because of which there is a risk that we will end up paying a huge amount of the money in our home currency against the amount we have to pay in the foreign currency. So how do you how can you categorize these risks? Okay,
There are three types of risk in your syllabus: translation risk, transaction risk, and economic risk. Translation risk is basically a risk of loss when financial statements of a company are translated from one currency to another. So basically, you guys know that businesses are acquired across the borders. Let's just take an example. यूनिलीवर, आप सबको पता है यूनिलीवर कंपनी के बारे में। यूनिलीवर कंपनी, यूनिलीवर हिंदुस्तान के नाम से भी ऑपरेट करती है इंडिया में, यूनिलीवर पाकिस्तान के नाम से ऑपरेट करती है पाकिस्तान में, और यूनिलीवर के अलग अलग मजीद जो है कंट्रीज में ऑफिसेज हैं जहां वो ऑपरेट करती है। उन कंट्रीज में वो सेपरेट एंटिटी के नाम से रजिस्टर्ड है यूनिलीवर के साथ। तो उस वजह से उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिफरेंट बनते हैं। जब उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिफरेंट बनते हैं तो उनकी अकाउंटिंग डिफरेंट होती है, उनकी करेंसी उस हिसाब से डिफरेंट होती है। अब आप सब मुझे एक बात बताओ, यूनिलीवर इट्सेल्फ यूएसए का ब्रांड है। वो सपोज यूएसए का ब्रांड है। अब उस यूएसए के ब्रांड को हम पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं, इंडिया में भी ऑपरेट कर रहे हैं, बांग्लादेश में भी ऑपरेट कर रहे हैं, नेपाल में भी ऑपरेट कर रहे हैं, हर जगह ऑपरेट कर रहे हैं। जब ईयर एंड पे उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे तो सब अपने अपने बना देंगे। भाई यूनिलीवर पाकिस्तान पीकेआर में बना देगा, यूनिलीवर इंडिया आईएनआर में बना देगा। लेकिन जब ग्लोबल को सबके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंसोलिडेट करने होंगे अपने स्टेटमेंट्स में, ये देखो भाई मेरी फॉरेन सब्सिडरीज जो है सबने इतना 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 कमाया तो मेरा टोटल इनकम, टोटल रेवेन्यू इतना हो गया। तो वो कैसे करेगा? मतलब उसके जो है यूएसडी में बने हुए स्टेटमेंट्स। अब वो अपने स्टेटमेंट्स यूएसडी में जो उसके बने हुए हैं उनको वो क्या यूएसडी के साथ पीकेआर, आईएनआर, टीके सब डालेगा? नहीं ना। वो क्या करेगा? वो उन सबको ट्रांसलेट कर देगा। कैसे ट्रांसलेट करेगा? एवरेज रेट पे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ईयर एंड पे ईयर के एवरेज रेट पे ट्रांसलेट हो जाते हैं और पता चल जाता है कि यार पीकेआर में और आईएनआर में किसने कमाया ना, उनको यूएसडी में ट्रांसलेट करके आज बता दो कि यार यूएसडी में मैंने कितना कमाया। तो मैं अपने स्टेटमेंट्स में यूएसडी में मेंशन कर दूंगा कि यार देखो ये मेरी अपनी यूएसडी की इनकम है, ये पीकेआर की इनकम आ गई, आईएनआर की इनकम आ गई, टोटल आके ये इनकम आ गई। अब सीधी बात है, जब इस तरह होगा तो एक रिस्क होता है कि यार मैंने एक्चुअल में जिस दिन मैंने कमाया था, साल के तौर पे मैंने 30 जून को कमाया था $100। पीकेआर मैंने जो कमाया साल में, मैंने 30,000 पीकेआर कमाया, जिसको अगर मैं कन्वर्ट करूँ 300 से तो बनता है ना $100। लेकिन जब मेरे स्टेटमेंट्स जो है यूएसडी में कन्वर्ट होंगे, जब यूएसडी की बनेगी इनकम स्टेटमेंट और यूएसडी में जब वो कन्वर्ट होंगे, तो फॉर सपोज अगर उस दिन जो है रेट चले गया 600, अब मैंने जिसने $100 जितना कमाया था उसके जब स्टेटमेंट्स कन्वर्ट होंगे यूएसडी में तो वो हो जाएंगे $50 पे। तो ये रिस्क है ना कि यार मैं जिस दिन मेरे ट्रांसलेट होंगे एक करेंसी से दूसरे करेंसी में, उस दिन मेरी कम हो जाएगी इनकम। तो इसको कहते हैं ट्रांसलेशन रिस्क। एक होता है ट्रांजैक्शन रिस्क। ट्रांजैक्शन रिस्क बेसिकली होता है जब हम स्पेसिफिक बाइंग और सेलिंग ट्रांजैक्शंस पर ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है। अब जब आप स्पेसिफिक बाइंग और सेलिंग ट्रांजैक्शंस पर ऑपरेट कर रहे होते हैं तो उसमें आप ट्रांजैक्शन रिस्क कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे? चले भाई मैं आज बैठा हुआ हूँ पाकिस्तान में, मैं गया था इटली, इटली में मुझे पसंद आ गई एक फरारी। उस टाइम पे उस फरारी की वैल्यू बनती थी लेट्स से $50,000। मैंने कन्वर्जन लगाया वहां बैठे बैठे कि यार ये तो भाई तकरीबन बन जाएगी यार $50,000 के हिसाब से भी। अगर मैं 300 पे लगाऊं तो 50,000 पे 5 लाख, 50 लाख, 1.5 करोड़ की बन गई। मैंने बोला 1.5 करोड़ की गाड़ी तो सही है यार दानियल, हम ले आते हैं इसको पाकिस्तान। हम चले गए पाकिस्तान, हमने 1.5 करोड़ जमा किया, थोड़ा थोड़ा कर करके मेहनत कर करके हमने काम काज कर करके सब जगहों से बचा कुचा कर हमने 1.5 करोड़ जमा कर लिया। अब उस दिन मैं क्या रिस्क लेके बैठा था कि यार मेरे पास 1.5 करोड़ है तो मेरे पास फरारी आ जाएगी इटली से। लेकिन अब जब मैं इटली गया फरारी खरीदने
तो वो है कितने की, $50,000 की है, लेकिन मेरा रेट 300 से जंप कर गया पर, वो चले गया 400, गाड़ी हो गई 2 करोड़। अब ये तो मुझे लॉस हो गया ना यार। एक स्पेसिफिक बाइंग ट्रांजैक्शन थी मेरी, फरारी की, लाल फरारी की मेरी ट्रांजैक्शन थी, तो मुझे लॉस हो गया है ये तो, तकरीबन 50 लाख का, बैठे बैठे, जबकि मैंने तो कुछ किया भी नहीं। क्यों लॉस हो गया भाई? मतलब मेरी चीज की वैल्यू बढ़ गई, लेकिन मेरे लिए तो लॉस है ना यार। मेरे, जहाँ मुझे 1.5 करोड़ खर्चना था, अब मुझे 2 करोड़ खर्चना पड़ेगा, तो ये मेरे लिए लॉस है। इसको कहते हैं ट्रांजैक्शन रिस्क। एक होता है इकोनॉमिक रिस्क, बेसिकली ये होता है जब सब कुछ एक साथ हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब आपका बाइंग में भी नुकसान हो गया, आपका सेलिंग में भी नुकसान हो गया। मैंने एक चीज खरीदनी थी, इटली से मैंने गाड़ी खरीदनी थी, और मैंने उसको भेजना था अमेरिका। मैंने बोला चलो यार 2 करोड़ की पड़ रही है, मैं 2.5 करोड़ की वहां भेज दूंगा। मेरा 2.5 करोड़ के हिसाब से यूएसडी बनता था 400 कर, अगर मैं लगाऊं भी तो एक मोटा मोटा 6 साढ़े 6 सौ, मतलब 60-65 थाउजेंड यूएसडी। मैंने बोला चलो $50,000 की खरीदते हैं, 60-60 हजार डॉलर की बेचेंगे, 10-15 हजार डॉलर का मस्त फायदा। मैंने 400 के रेट पे गाड़ी खरीद ली। मेरे दिमाग में अभी भी चल रहा है कि जब मैं बेचने जाऊंगा तब भी 400 का रेट होगा। लेकिन अब मैं जब अमेरिका बेचने जा रहा हूँ गाड़ी, तो रेट हो गया $200। मेरी गाड़ी की वैल्यू हो गई ठप नीचे, गाड़ी की वैल्यू $50,000 ही गई। अब आप वैल्यू चेक करो, गाड़ी की वैल्यू डॉलर में अभी भी, मेरे पास जो इनवॉइस है वो है $50,000। जब मैं अमेरिका जाके गाड़ी बेचूंगा तब भी मेरी गाड़ी की इनवॉइस होगी $50,000, लेकिन जो मुझे पीकेआर रिसीव होगा तो कम होगा ना। हाँ, मैंने 2 करोड़ की गाड़ी खरीदी, अब मैं बेच दूंगा तो मुझे मिलेगा पाकिस्तानी 1 करोड़ रुपया। इसको बोलते हैं इकोनॉमिक रिस्क, कि आपके जब खरीदने और बेचने दोनों में हो जाए लॉस। ठीक है। अब हो गए हमारे टाइप्स ऑफ रिस्क कवर। अब जब आपके टाइप्स ऑफ रिस्क कितनी आराम से मजे से मक्खन मलाई की तरह कवर हो गए हैं, तो आपको हेजिंग करने में आएगी आसानी। देखो, हेजिंग करने के होते हैं 6 तरीके, सही है ना। 6 तरीके हैं हेजिंग करने के आपके रिस्क, आपके सिलेबस में 6 तरीके। डील इन होम करेंसी, लीडिंग, लैगिंग, मैचिंग एंड नेटिंग, फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट और फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स, और मनी मार्केट हेजिंग। 6 नाम है, मेरे साथ रिपीट करो। डील इन होम करेंसी, लीडिंग, लैगिंग, मैचिंग, फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स और मनी मार्केट हेजिंग। अब आपके सिलेबस में जो शुरू के 4 हैं, ये वाले, इनके ऊपर आपका आपका जो सिलेबस है वो कहता है कि हम इनकी खाली थ्योरी भाई टेस्ट करेंगे, और कुछ टेस्ट नहीं करना हमने। हाँ, जो ये दो हैं, इसको हम थ्योरी में भी टेस्ट करेंगे, इसको हम एमटीक्यू में भी टेस्ट करेंगे, और अगर सिलेबस और एग्जामिनर चाहे तो वो इन 2 एरियाज को आपके फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस में भी पूछ सकता है। उसको मना नहीं है, वो पूछ सकता है, वो जो चाहे पूछ सकता है आपसे। जब वो आपसे जो चाहे पूछ सकता है, तो वो इन दो को भी आपके सवाल के किसी हिस्से में इंकॉर्पोरेट करके पूछ सकता है। ठीक है भाई, हो गया क्लियर। अब शुरू के 4 मुका दें जल्दी से, आ जाओ। नाम से पढ़ते हैं, नाम से ही मतलब समझ आ जाएगा। डील एंड होम करेंसी, भाई रिक्वेस्ट करो कि भाई मुझे पाकिस्तानी रुपयों में पैसे चाहिए। भाई मैंने इतने की गाड़ी खरीदी थी, मैंने खरीदी थी 2 करोड़ रुपए की, मुझे 2.5 करोड़ रुपया चाहिए, मुझे 2.5 करोड़ रुपया दो। ठीक है, अब वो अगर डॉलर नीचे ऊपर हो तो मेरा फायदा है। इसमें रिस्क है कम रेट का, लेकिन आपके लिए बेनिफिट भी हो सकता है, आपके लिए ड्रॉबैक भी हो सकता है। अगर डॉलर नीचे चले गया, आपके लिए तो बेनिफिट ही बेनिफिट, लेकिन अगर डॉलर ऊपर चले गया आपका लॉस, आपको 50,000 रुपये रिकवर नहीं होंगे। मैंने 2.5 करोड़ की बेची, 400 पे रहा, मेरे को मेरे 65,000 रिकवर, मैं खुश। लेकिन अगर मैंने 2.5 करोड़ की बेची, 200 रुपए का हो गया, तो मेरे तो वारे नहीं आ रहे भाई, मैं तो मजे ही मजे, मेरे तो मजे ही मजे। लेकिन अगर अगर डॉलर 400 से 600 का हो गया, फिर आपका नुकसान, क्योंकि आपको तो फिर 50,000 भी नहीं रिसीव होने पूरे पूरे। समझ आई बात? इधर डील एंड होम करेंसी में ये रिस्क। लीडिंग और लैगिंग एक दूसरे के ऑपोजिट से। लीडिंग का मतलब है अर्ली पेमेंट कर दो भाई,
मैं हाथ वाथ पेमेंट कर रहा हूँ भाई। मैं गाड़ी पसंद करने गया था ना इटली, मैंने बोला भाई ये पकड़ मेरे 1.5 करोड़ रुपया, मैं आके तेरे से कल को गाड़ी ले जाऊँ। मेरा तो 1.5 करोड़ रुपया खर्च हुआ ना, अब डॉलर ऊपर और नीचे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरा तो 1.5 करोड़ रुपया खर्च हो गया। हाँ, अगर करेंसी नीचे चली गई तो मेरा नुकसान, ऊपर गई तो मेरा फायदा। अब लेगिंग क्या होता है कि भाई मुझे पता है कि डॉलर नीचे जाने वाला, मेरे फायदा हो सकता है कि ना, मैं डॉलर 200 पे जाएगा, 50,000 के हिसाब से मैं 1 करोड़ रुपया खर्च करके मजे कर लूंगा अपने पूरे पूरे। तो मैं उसको बोलूं भाई मैं गाड़ी पसंद कर रहा हूँ, ये मेरी तू डन कर दे $50,000 में, मैं बाद में आके पैसे दे दूंगा। मुझे तो पता है कि यार नीचे जाना है डॉलर, तो मेरा तो प्रॉफिट हो जाएगा। तो मैं उसको बोलूंगा भाई आप संभालो अपने पास गाड़ी, मैं आकर ले जाऊंगा आपसे। एक सेकंड ना। सही है, मैं उसको बोलूँ भाई मैं आपसे बात में आके ले जाऊंगा, मैं आपसे बात में आके पेमेंट कर दूंगा, आप $50,000 पे मेरी गाड़ी बुक कर दो, ताकि इनवॉइस ऊपर नीचे नहीं हो, मेरा रेट मुझे पता है नीचे जाना है, तो मैं बेनिफिट उठा लूँ। ये तब होता है जब रिस्क हो के करेंसी नीचे जाने वाली है, ये तब होता है जब रिस्क हो के ऊपर जाना है। ठीक है, ऊपर नीचे। भाई मैचिंग नेटिंग, मैचिंग नेटिंग क्या है? जब हम ऑफसेट करवा दे रिसीट विद पेमेंट, भाई कैसे आ जाओ, बड़ा मजेदार कैसे ही है। हम उस फरारी की ही एग्जांपल को चलाएंगे, ठीक है ना। भाई मिसाल, मैं हूँ पाकिस्तानी कंपनी जो कि फरारी खरीदती है, फरारी बेचती है, ठीक है। अब ये जो है मुझे, इसको मैंने फरारी बेची है 1,000, मैंने इसको फरारी बेच दी। ये देखो वैल्यूज को भी इग्नोर करो, इसको मैंने फरारी बेच दी, इससे मैंने खरीदी। मैं जो है अब क्या करूंगा, मैं इसको कहूंगा कि भाई एक काम कर, तू इतने पैसे इसको दे दे और बाकी पैसे मेरे पास भेज दे। मिसाल है, मैं उसको कहूंगा, वैसे ए वाले को मैं कहूंगा कि भाई एक काम करो, आप जो है $65,000 में से $50,000 सीधे सीधे इटली वाले बंदे के अकाउंट में डाल दो, और बाकी जो रकम बची है 15,000 वो मुझे भेज दो। अच्छा, अब इसमें क्या है, अगर मैं उससे पूरे 65 मंगवाता, आगे 50 बेचता, 50 पे भी रिस्क होता, 65 पे भी रिस्क होता, तो बहुत ज्यादा रिस्क हो जाता। अगर इकोनॉमिक रिस्क वाला हालात होते तो मैं मर ही जाता, बिल्कुल वही सही है। तो अब इधर क्या हो रहा है, 65 में से 50 उसको चले गए, 15 मेरे पास आए। रिस्क खाली उस 15 पे है कि अगर डॉलर ऊपर गया तो मेरे वारे नहीं आ रहे, डॉलर ऊपर गया तो मैं मर गया, डॉलर नीचे आया तो मेरे मजे ही मजे। ठीक है भाई, समझ आ गई बात? सब क्लियर है, सबको सब समझ आ रहा है? बेहतरीन सेशन चल रहा है, सबके मजे लगे हुए हैं भाई, सबको सब कुछ समझ आ गया इधर। कि अगर जो है नेटिंग मैचिंग होती है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ जो डिफरेंशियल अमाउंट होता है उस पर रिस्क होता है, बाकी सब तो ऑफसेट हो जाता है। ठीक है, चल अब हम बढ़ते हैं जिसको कहते हैं एलिफेंट इन द रूम, जो आपके सिलेबस में दो एरियाज है, फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स और मनी मार्केट एजिंग। चलो आ जाओ, तो इसको हम थोड़ा सा खींचेंगे भाई। देखो वो थ्योरी थी वो मैंने समझा दिया, थोड़ा सा डेप्थ में जाके चीजें समझा दी, अब इसको हम खींचेंगे, आ जाओ। भाई देखो फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि मैं जो है बैंक से, याद रखना ये जो दो है ये बैंक से डायरेक्ट डीलिंग वाले हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है कि फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट में हम रेट फिक्स कर, कि भाई मैं इस दिन इस रेट पे आपसे इतना XYZ करेंसी खरीदूंगा। अब होता क्या है कि भाई ये चीजें बैंक की डीलिंग होती है, बैंक डीलिंग होती है ना, तो बैंक आपको रेट कोट करती है।
बैंक जब आपको रेट कोट करेगी, बैंक आपको रेट कोट करती है दो तरीकों से, इनडायरेक्ट कोट, डायरेक्ट। भाई इनडायरेक्ट कोट देखो यार, आप बैठे हो पाकिस्तान में, आपके लिए डायरेक्ट चीज है पाकिस्तानी करेंसी। अगर मैं इतना आसान से बताऊं, अब सवाल में वो आपको किसी भी कंट्री में फेंक देगा, उसकी करेंसी आपको बता देगा। तो जब आपको बता दे कि यार आप इस कंट्री में हो और ये आपकी करेंसी है, तो मेरे को उसने बोल दिया देखो मैं यूएस में हूँ, मेरी यूएस की करेंसी है। मैं यूके में हूँ, मेरी पाउंड करेंसी है। मैं ब्रिटेन में हूँ, मेरी यूरो करेंसी है। जब उसने मुझे बता दिया, तो जो मुझे जिस कंट्री में मुझे उसने बिठाया है वो मेरी लोकल करेंसी होगी। अगर मेरी लोकल करेंसी रेट में नीचे की तरफ लिखी हुई है तो जो है मैं इनडायरेक्ट कोर्ट में हूँ। और अगर मेरी लोकल करेंसी ऊपर लिखी हुई है कोर्ट में, तो मैं डायरेक्ट कोर्ट में। अब देखो ये एक तो ये रूल हो गया भाई, तरीका हो गया ये ढूंढने का कि डायरेक्ट कोर्ट और इनडायरेक्ट कोर्ट में किस तरह आप डिफरेंस ले सकते हो, कि मतलब कौन सा डायरेक्ट कोर्ट है कौन सा इनडायरेक्ट कोर्ट है, वो पता चल गया। अब इनका मेन वर्किंग, भाई अगर तो सवाल ने मुझे इनडायरेक्ट कोर्ट दिया है तो मैं डिवाइड करूंगा, और अगर डायरेक्ट कोर्ट दिया है तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसको। सवाल, ये जब सवाल एग्जाम्पल करोगे ना, तब समझ आएगा कि कैसे डायरेक्ट कोर्ट में कब क्यों डिवाइड होता है, डायरेक्ट कोर्ट में क्यों मल्टीप्लाई होता है और इनडायरेक्ट कोर्ट में क्यों डिवाइड होता है। ये सवाल करोगे तब समझ आएगा। बाकी ये चीज याद कर लो, एक की याद कर लो दूसरे की याद हो जाएगी। किसकी याद करें, चलो इनडायरेक्ट की याद करते हैं। इनडायरेक्ट कोर्ट में लो रेट बाइंग हाई रेट सेलिंग, रट्टा लगाओ मेरे साथ, चलो रट्टा लगाओ मेरे साथ। इनडायरेक्ट कोर्ट में लो रेट बाइंग हाई रेट सेलिंग, लो रेट बाइंग हाई रेट सेलिंग, लो रेट बाइंग हाई रेट सेलिंग, LBHS। यूं याद कर लो, इनडायरेक्ट कोर्ट में LBHS, 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 लो बाय हाई सेल, लो बाय हाई सेल, लो बाय हाई सेल। जब लो बाय हाई सेल होगा इनडायरेक्ट में, तो डायरेक्ट डायरेक्ट में हाई बाय लो सेल, हाई बाय लो सेल, हाई बाय लो सेल। ये याद कर लो। इसको याद करने के अलावा और कोई चारा नहीं है तुम्हारे पास। जब इसको याद कर लोगे ये तुम्हें तुम्हारे एफएम में काम आएगा, तुम्हारे एएफएम में काम आएगा। और जब एफएम एएफएम में काम आएगा, पेपर पास कर लोगे तो मुझे दोगे तुम दुआएं कि हमें सर ने याद करा दिया। LBHS इनडायरेक्ट कोर्ट में, इनडायरेक्ट कोर्ट में एल डिवाइड LBHS, तो डायरेक्ट कोर्ट में मल्टीप्लाई HBSL। सही है, ठीक है, समझ आ गया। एग्जाम्पल क्वेश्चन है, लो रेट बाइंग हाई रेट सेलिंग, लो रेट बाइंग हाई रेट सेलिंग। इनडायरेक्ट है तो लो रेट बाइंग हाई रेट सेलिंग, लो रेट बाइंग हाई रेट सेलिंग। मैं पाकिस्तान में हूँ, उसने बता दिया मैं पाकिस्तान में हूँ, मेरी पीकेआर करेंसी है, मुझे $1000 पे करने 3 महीने बाद। ठीक है ना, लोकल करेंसी पीकेआर आ गई तो डायरेक्ट कोड, क्योंकि पीकेआर नीचे है तो लो रेट बाइंग हाई रेट सेलिंग। अब मुझे पे करना है, जब मुझे पे करना है तब मुझे एक बात बताओ, मैं क्या करूँ। मैं पीकेआर बेचूंगा ना, तो मुझे क्या दिया है, उसने मुझे USD टू पीकेआर दिया है। एक पीकेआर में कितना USD आएगा, तो मुझे पीकेआर बेचना है 3 महीने बाद, 3 मंथ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होगा। उसने मुझसे पूछा बताओ क्या रेट है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में लेटर डेट फिक्स रेट, हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, हमारी बात बन गई कि हम जो है अब 0.010 में, ओ सॉरी 0.009 में हम डॉलर खरीदेंगे। लो रेट बाइंग, लो रेट बाइंग, लो रेट बाइंग। सही है। अब हम इस रेट पे डॉलर खरीदेंगे तो जो है मुझे इतना पीकेआर पे करना पड़ेगा। समझ आई बात, हो गया क्लियर सबको सब कुछ इधर इस वक्त। चलो आगे बढ़ते हैं। मनी मार्केट हेज, भाई आ जाओ, मजा आ जाएगा। यूं समझो कि मनी मार्केट हेज एक किस्म का तुम्हारा नेटिंग मैचिंग वाला ही मामला है। सही है ना, बस इसमें फर्क ये है कि कोई दूसरी पार्टी नहीं है, तुम बैंकों से ही बैंकों में डीलिंग कर। बड़ी मजा आएगी इस बता। हाँ,
ये पूरा हम सवाल एग्जाम्पल से, ये पूरा मनी मार्केट है, इसमें एक एग्जाम्पल में तुम्हें मुक्का देता हूँ आज। हाँ तो भाई आ जाओ। मनी मार्केट हेज क्या है भाई? मनी मार्केट हेज बेसिकली यूँ समझो कि मैं जो है आज गया इटली, इटली में मैंने पसंद की फरारी $50,000 की। मैंने जो है बोला डन हो गया भाई। अब मैं क्या करूंगा, मैं बोरो करूंगा फॉरेन बैंक से पैसा। सॉरी, ये रिसीट का केस है, पेमेंट का केस होता है। मुझे फरारी वालों ने बोला आपको 3 महीने बाद पैसे मिलने हैं। मैंने बोला ओके। मैं गया पाकिस्तान। पाकिस्तान में मैं आया बैंक में, एचबीएल, एचबीएल में जाके मैंने बोला कि भाई अब मुझे जो है पैसे चाहिए। कितना पैसा चाहिए मुझे? इतना पैसा चाहिए कि वो जब मैं डिपॉजिट करूं फॉरेन बैंक, और जो 3 महीने का उस पर इंटरेस्ट आए, वो इंटरेस्ट और वो पैसा मिलकर $50,000 बन जाए। जब वो कैसे होगा, उसकी हम वर्किंग करेंगे एग्जाम्पल पे। ठीक है ना? अच्छा, जब मैं क्या करूंगा, मुझे एचबीएल ने बोला चलो ठीक है भैया आपके पैसे बन गए, ये लो अपना पैसा। मैंने एचबीएल से पैसा लिया, एक्सचेंज करवाया स्पॉट रेट पे यूएसडी में पीकेआर को। यूएसडी दी, यूएसडी लेके गया मैं इटली। इटली में जाके मैंने बोला भाई बैंक में अकाउंट खोलो मेरा, डर 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 अकाउंट खोलना है बैंक में। बैंक में अकाउंट खोला, उधर पैसा डाला। मैंने बोला 3 महीने तक इस पे मुझे दो सूद, इंटरेस्ट दो मुझे इस पे 3 महीने तक, तुम लोग 3 महीने तक उस पर इंटरेस्ट आएगा। उस इंटरेस्ट को मैं जो है री इन्वेस्ट करता रहूंगा पैसों में। जब 3 महीने बाद वो इंटरेस्ट और पैसा मिलकर जो है बन जाएंगे मेरे $50,000, मैं फरारी वालों को बोलूंगा भाई ये लो 3 महीने का पोस्ट डेटेड चेक, 3 महीने बाद जाके कैश करा लेना। ठीक है? अच्छा, अब जो मैंने पैसा लिया हुआ है एचबीएल से, वो भी तो मैंने इंटरेस्ट पे लिया हुआ है। जब 3 महीने बाद मैं क्या करूंगा, मेरी चीज आ जाएगी, मैं फिर उस पैसे को उतार दूंगा एचबीएल पे। एचबीएल को जब मैं इंटरेस्ट के साथ पैसा उतारूंगा, तो अब मैं करूंगा कि भाई मैंने तो $50,000 भरे और मुझे इतने पैसे लगे, मेरे को क्या रेट आया। यूजली ये रेट ओवर रेट कॉन्ट्रैक्ट से ऊपर नीचे ही होता है, और उस दिन के स्पॉट रेट से भी फर्क नहीं होता है। ये तब किया जाता है जब आपकी पेमेंट्स ज्यादा हो, बड़ी हो, और आपके पास दोनों जगहों पे बैंक अकाउंट्स मौजूद हों। ये हो गया हमारा करेंसी रिस्क मैनेजमेंट पूरा रिवाइज। ये एक गलत एग्जाम्पल क्वेश्चन है इसका। ये मेरे पूरे कोर्स में अपडेटेड है, अपलोडेड है। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में विद इंटरेस्ट रिस्क मैनेजमेंट। टिल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।